free over there, by the way? Medicine? No, It's not free. I think that's only in Germany. सही है, सही है. But in Germany, you have to learn German. Yeah, that's true, but I don't think so. Like, it's not a big deal to learn a new language. You could spend a little bit of time and you'll automatically get accustomed to it. In fact, if you start learning beforehand and then once you've landed over there, तो आपकी learning speed एकदम बढ़ती है because you have to use it to, talk to people. एकदम आपकी Um, language learning skill speed up होती है. I think you can learn a good amount of German to travel and then go to shops and do anything you want in like 2 to 3 months maximum. And if someone is a fast learner, so you can even do it in 1 minute. Oh, sorry, one month. yeah, I have a friend who wants Huh. to go to Germany. He's learned Hmm. German to go, and it's really annoying. Hmm. He'll just start speaking in German. Hopefully, Nice, he that's don't know good. German. That means he's learning well. Okay. अच्छा खैर. So we were seeing कि भाई देखो glycine जो है, glycine has the structure of an amine as well as a carboxylic acid. So that means it has dual properties. It has the properties of an acid as well as a base. तो अगर हम acid property देखें तो we know that the carboxylic acid is going to act as a proton donor, right? So होगा ये कि you are going to dissociate H plus ions, right? यही तो काम करता है आपके पास carboxylic acid. You get an O minus and an H plus. So that means अगर तो आप carboxylic acid को पानी में dissolve करेंगे, it's actually going to give off H plus ions. सही है. अच्छा. और by the way, do you remember how is it that we give off H plus ions? What is the ये तो condensed equation and what was the complete equation of acid dissociation? You'd have a proton acceptor, Let's say HCl. We and know that it dissociates to give you H plus and Cl negative, but this is the incomplete version. What is the full version of HCl dissolving in water? uh, HCl कर लें, कुछ भी कर लें. HCl plus H2O. Hmm. Plus You get H2O. you get H3O plus. Yes. And Cl minus. Yes. Yeah. So that H3O plus is actually what we call H plus. तो यहाँ पे भी ये जो H plus हम कह रहे हैं, it's basically H3O plus. अगर आपको H3O plus करना है, फिर आपको यहाँ पे भी H2 ऐड करना पड़ेगा. As in कि the water has now accepted another proton by ripping it off the carboxylic acid. That's what H plus actually means. So yeah, just a small reminder. अच्छा. And by the way, इसका structural formula इस तरीके से हम लिखते हैं, like H2N at the left कर लें, right कर लें, whatever you want. H2N, which is the amine side chain, and then you have CH2, which is the CH2 part, and the carboxylic acid. और यहाँ पे this is the amino acid जो कि ion बन चुका है. So that means this is the salt of the amino acid, you could say. तो यहाँ पे इसका structure again होगा H2N, CH2, C double bond O minus, and this is the ion of the carboxylic acid. सही है. अच्छा, अब similarly हमने देखा कि भाई this can act as a proton donor, but we also have a base over here जो कि amine है. The amine is going to act as a proton, yes, acceptor or donor? Acceptor. Proton acceptor. What about electron? It would be an electron donor. Exactly, electron donor. सही है. अच्छा, so in this case, for example, we know that this nitrogen has two lone pairs, so it can act as a proton acceptor or it can act as an electron donor, जिसमें ये जो H plus free होगा अगर तो एक acidic solution में आपने डाला है, तो it's actually going to accept the proton towards itself and become an ion. आजा उधर. हाँ. So you're going to donate these electrons to the H plus and अब आपके ऊपर इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया. सही है. सो ये एक प्रोटॉन आपने एक्सेप्ट कर लिया. यहाँ पर यू कुड से दैट यू हैव डोनेटेड एन इलेक्ट्रॉन. सही है. ये प्रॉपर्टीज हमारी थी एसिड और बेस की. अच्छा, सो दैट मीन्स अगर हम समराइज कर लें, नो मैटर व्हाट द आर ग्रुप इज, इफ यू पुट इट इन एन एसिडिक सोल्यूशन जहां पे H प्लस की क्वांटिटी ज्यादा है, what should it react with? What should the amino acid do under those conditions? The NH
2 would accept the hydrogen and become an H3 plus. एग्जैक्टली तो यहाँ पे you are going to protonate the amine. यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं amine is protonated. सही है. अच्छा, and then carboxylic acid will stay the same because it doesn't react with an acid because it is an acid. And if you dip the amino acid into an alkaline solution, तो फिर क्या होगा? The amine is going to stay the same, लेकिन the OH is actually going to react with the alkaline OH और ये O minus बन जाएगा. एंड ये जो H plus है ये मिलके सारे उसको ये यहाँ पे हम कह देते हैं यहाँ पे we'll just write a water molecule plus H2O. सही है, क्योंकि इसका जो H plus रिलीज होगा एंड इसका जो OH minus होगा they're going to combine together to form an H2O. सही है. ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस वाज डीप्रोटोनेटेड. सही है. यहाँ पर यू कुड सिंपली से कि वो न्यूट्रलाइज हो गया. अच्छा, हाँ, आगे. अब a very important topic regarding amino acids वो है Zwitter ions. अब Zwitter ions is a special kind of amino acid क्योंकि you might have wondered कि यहाँ पे they have a carboxylic acid and an amine on the same group. So can't they just neutralize themselves? That is possible. In fact, half of amino acids is about that, and we call them Zwitter ions. Okay, due to the presence of both acid and base, वो amino acids can react with themselves. सही है. अब होगा क्या? इट्स वेरी सिंपल कि देखिए इफ यू डिप इट इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन में ये होगा aqueous solution. Aqueous solution में you know that the carboxylic acid is going to dissociate, right? तो ये जो O है, this is now, ये चलो इसको हम लिख देते हैं कि this is now going to dissociate an H plus, right? और वो जो H plus है, वो H plus is going to be received by the amine. अब इससे क्या होगा? You're actually going to neutralize the compound क्योंकि हम दोबारा बना लेते हैं सी एट द टॉप हाइड्रोजन एज इज. अच्छा, अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको आपने डीप्रोटोनेट कर दिए, राइट? वो O माइनस बन गए एंड जो एमाइन था आपने उसको प्रोटोनेट कर दिया तो उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो अगर आप देखें द नेट चार्ज इज एक्चुअली जीरो, राइट? क्योंकि आपके पास यहाँ पे नेट चार्ज इज जीरो as both acid and base neutralize themselves. सही है. अब हाँ जी, यहां तक मेक सेंस? Yeah. ओके. अब इनको हम कहते हैं Zwitter ions के इन न्यूट्रल सॉल्यूशन की ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन की मैंने एग्जांपल दी है कि ग्लाइसिन इज गोइंग टू एक्ट एज अ Zwitter ion एट दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो अक्सर क्वेश्चन में यूज होता है, एट द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. ठीक है. अब ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का इसका मैं बताता हूँ. सही है. सो आइडिया मेन ये है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो ग्लाइसिन है या अमीनो एसिड्स हैं दे आर गोइंग टू एग्जिस्ट एज Zwitter ions एंड Zwitter ions आर बेसिकली कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स एज इन के दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद देमसेल्व्स और वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. दैट्स व्हाट इज Zwitter ion इज. सही है. सो Zwitter ion को हम ये भी कह सकते हैं दैट दीज आर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. सही है. अच्छा, अब आगे चलते हैं जरा. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसको हम पीआई भी कहते हैं. सही है. इट इज बेसिकली ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज जस्ट अ वैल्यू ऑफ पीएच. इट इज द पीएच at which the amino acid exists as a Zwitter ion. मतलब ये वो वाला pH है जहां पे the amino acid is going to be in a neutral state. क्योंकि हमने देखा था कि इन एसिडिक कंडीशंस वो न्यूट्रल नहीं है. यहाँ पे नेट चार्ज इज पॉजिटिव, राइट? क्योंकि वो एक पूरा पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. इसके ऊपर नेट चार्ज इज नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव, राइट? तो
वी नो कि अगर तो आप उनको एक सर्टन पीएच की कंडीशन में रखेंगे, दे आर गोइंग टू बी न्यूट्रल। सही है, जिस तरह कि हमने यहां पे देखा कि इन सम कंडीशंस द ओवरऑल नेट चार्ज इज एक्चुअली गोइंग टू बी कैंसल्ड आउट, जैसे कि यहां पे दिस इज अ ग्लाइसिन ज्विटर आयन, ग्लाइसिन ज्विटर आयन। सही है। अच्छा, अब बात क्या था, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या था, इट वाज द पीएच जहां पे अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन, क्योंकि द प्रॉब्लम इज के न्यूट्रल पीएच पे जरूरी नहीं है कि वो ज्विटर आयन पे एग्जिस्ट करे, क्योंकि द प्रॉब्लम यहां पे तो क्योंकि आपके पास क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक का था और एक अमाइन का था, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन हमने ऐसे भी तो एग्जांपल्स देखी थी कि जहां पे एच की जगह यू हैड अ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब उस कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से द नेट चार्ज इज नॉट गोइंग टू बी जीरो एट अ 7 पीएच। अब एग्जांपल आपको बता दूं ताकि आपको बेहतर समझ आ रहे। सो आइडिया इज कि इफ द पीएच इज लेस देन द पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम पीआई भी कहते हैं, pH is less than the pi. pi again क्या था? It was the pH at Which amino acids are neutral. exactly So at these are ions, net right? charge is equals to zero. तो let's say हमारा जो pH it's actually less than the pi. इसका मतलब क्या होगा? That you are actually in acidic conditions. तो अगर acidic conditions होगी तो what would be the molecule? Would it be positively charged or negatively charged? इट्स एन एसिडिक कंडीशन, क्योंकि पीआई पे तो न्यूट्रल होगा ना, इट्स गोइंग द नेट चार्ज इज गोइंग टू बी जीरो। यू ब्रॉट इट डाउन टू लेट्स से 1, It would तो be positively charged इट वुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों? because the हाँ, H plus would be accepted by the base, the which is NH. base exactly, so the molecule is actually going to be positively charged। सही है। अच्छा, अब let's say that the pH is now greater than pi, that means कि you are actually in now basic conditions। ठीक है, अब वो बेसिक कंडीशन का मतलब क्या है कि पीआई मींस के जहां पे वो न्यूट्रल है, राइट? लेकिन लेट्स से द पीएच आई एम यूजिंग इन अ सॉल्यूशन इज 13। अब 13 मींस के लेट्स से द पीआई वाज एट 5, ठीक है, इट वाज न्यूट्रल एट अ पीएच ऑफ 5, लेकिन आपने तो पीएच रखा हुआ है 13, दैट मींस दैट यू आर इन वे बेसिक कंडीशंस। तो आप इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा? Like, नेगेटिव चार्ज। सही है, क्योंकि इन बेसिक कंडीशन यू हैव लॉट्स ऑफ OH माइनस, OH माइनस बहुत ज्यादा होंगे, दैट मींस यू आर गोइंग टू यू नो रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल कर लेते हैं दो तीन, जैसे कि द पीआई ऑफ ग्लाइसिन इज 5.97। इसका मतलब ये है कि ग्लाइसिन एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन, ज्विटर आयन एट pH is equals to 5.97, जहां पे नेट चार्ज इज इक्वल्स टू जीरो। नेट क्यू को हम नेट क्यू लिख देते हैं। सही है। अब ये एलेनिन इज अ ज्विटर आयन एट पीएच 5.97, जहां पे अगेन नेट चार्ज इज इक्वल्स टू जीरो, एज इन द चार्जेस आर गोइंग टू कैंसिल आउट नो मैटर व्हाट यू डू। सही है, मतलब लेट्स से कि एलेनिन का पीआई इज 6.07, लेकिन आपने उसको एक 7 पीएच में डाल दिया, यू पुट इट इन प्योर वाटर। अब प्योर वाटर में एलेनिन इज नॉट गोइंग टू बी क्या कहते हैं, न्यूट्रल, क्योंकि यू हैव मेस्ड अप द चार्जेस, क्योंकि एलेनिन के अपने भी एक दो ग्रुप्स हैं विच वे और क्या कहते हैं स्वे द स्केल अ बिट। अब इसकी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको और बेहतर आइडिया हो जाए विद द डायग्राम ऑफ कोर्स। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड जो है इट्स अ ग्रेट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि अमीनो एसिड किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इन डिफरेंट कंडीशंस। अब यहाँ पे आप देखें, what does this mean? PI of glutamic acid is 2.77। it's the pH at which the molecule does not have any charge. Exactly, that means that the net charge is Zero. zero at that point। अच्छा, तो this is the pH जहां पे 2.77 है। How do you propose the molecule would look like at a pH of 2.77? It would be exactly the same. It will be exactly the same? नहीं नहीं नहीं, it won't be exactly the same। It would have a No, it would zero have a net charge। positive. It would have a positive charge because it हाँ, would be NH3, and then it would have a negative charge because it would be. exactly, so this would have a negative charge
and this is going to have an extra H and a positive charge. तो ये जो है ये आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं. सही है. अच्छा, बाय द वे इट्स अप टू यू कि आप ये नेगेटिव चार्ज इसको देना चाहते हैं या फिर इसको देना चाहते हैं. ईदर वन इज फाइन. सही है. द नेट चार्ज हैज टू बी जीरो. नेट क्यू इज इक्वल टू जीरो. अच्छा, तो अच्छा, बाय द वे इफ इट्स एन एक्व सोल्यूशन तो दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन एन आयनिक फॉर्म. सही है, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आयनिक फॉर्म में यू ऑलवेज हैव H प्लस एंड OH माइनस एक्व सोल्यूशंस में, राइट. तो हमेशा ये आयोनिक फॉर्म में, डिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में यू वोंट सी अमीनो एसिड्स, क्योंकि दिस इज लाइक इन सॉलिड्स. पानी में तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी डिसोसिएट कर जाएगा, ये एमाइन भी एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन. अच्छा, लेकिन नाउ लेट्स से आई पुट इट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ pH 1. अब क्या होगा? दैट मींस ये एसिडिक कंडीशंस में आपने उसको डाल दिया, राइट. यहां पे तो न्यूट्रल था, लेकिन यू पुट इट इन एन even acidic solution. So the NH2 would turn into NH3. It would get Yes, protonated and then it would become a positive charge. exactly. क्योंकि इनको तो फिर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि they're too acidic to dissolve. वो dissociate ही नहीं इतना ज्यादा करेंगे. That means the charge is actually going to be positive. तो net charge is equals to positive. Okay. What about this point? At pH 7, net charge zero किस पे था? 2.77 पे. So what if I use pure water? तब क्या करेंगे? The OH would dissociate. O minus? Yes. Yeah, it would become a minus and then you get water as well. Or no. Yes. And another thing, Wait. you'll also dissociate the other carboxylic Yeah. acid because it is too alkaline. तो ये भी हो जाएगा. ओह, तो ये भी डिसोसिएट कर जाएगा और ये भी डिसोसिएट कर जाएगा. ये इसको कुछ नहीं होगा बिकॉज इट्स रिलेटिवली इन अल्कलाइन कंडीशन. सही, तो ये रिलेटिव होता है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो यहाँ पे द नेट चार्ज इज एक्चुअली नेगेटिव. सही है. तो ये इसका मेन आइडिया है कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर न्यूट्रल एट डिफरेंट pHs, एंड जिस pH पे the amino acids are known to be neutral, उसको हम pi कहते हैं. सही है कि it is the pH at which the amino acid exists as a zwitterion, no net charge. सही है. तो ये आइडिया मेन था. डायग्राम में भी बता दिया है, उस तरीके से भी बता दिया है. तो होप दैट मेक्स सेंस. तो जब हम कहते हैं ना कि लेट्स से कि if I ask you कि some random amino acid, is it neutral at pH 7? Could you answer that? कि नहीं? Sorry, I zoned out. हाँ, मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा था कि if I ask you कि भाई I have X amino acid, can you tell me whether it's positively charged or negatively charged or neutral at 7 pH? Could you answer that question? Any amino acid. Any. X No, मतलब बता दिया ना कोई, लेकिन that's all the information I've given you. I would not be able to Exactly. Why? because each of them would have a different pH at which they're Exactly. it You would be cannot know. neutral. So the note is you cannot know the net charge of amino acid without knowing the pi. Without the pi. क्योंकि the pH 7, for as far as I could know, वो neutral भी हो सकता है. It could also be way too acidic. It could also be way too alkaline. The only way I can figure out whether 7 is alkaline or acidic is by knowing the pi. सही है. तो कुछ in a lot of amino acid questions आपको pi से related question आएगा, जहाँ पे they'll either give you the isoelectric point or they will show you the compound. Let's say for example वो आपको ये दिखा देते हैं. सही है. Let's say they give you a compound जहाँ पे exactly ये information given है that this is an amino acid. सही है. उस पे net charge negative है और pH is equals to 7. अब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, is the isoelectric point of this amino acid higher than 7 or lower than 7? So these are the kinds of questions that you'll get in amino acids. सही है. Yeah, it's lower Okay. than 7. हाँ, it has to be lower.
सही है, क्योंकि इसका मतलब ये है इफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिएक्टिंग विद इट, तो दैट मींस दिस इज relatively alkaline, relatively alkaline, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, यही चीज इसको हम जरा समराइज कर लेते हैं। तो अमीनो एसिड और पीएच का रिलेशनशिप ये है कि दे कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स एंड दे ऑल डिपेंड ऑन द पीएच। अगर आप उसको एसिडिक कंडीशंस में बनाते हैं, वेट, हाँ, अगर तो आप एसिडिक कंडीशंस में उनको रखते हैं तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि एच, हम बना लेते हैं एच सी, नो, H2N, C डबल बॉन्ड O OH, एंड देन R, और नीचे H। तो जनरल आइडिया इज कि अगर तो एसिडिक कंडीशन में, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि ये जो है ये प्रोटोनेट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू प्रोटोनेट, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में आपके पास बहुत सारे H प्लस होते हैं, तो ये H प्लस के साथ रिएक्ट करके यू आर गोइंग टू प्रोटोनेट दिस, एंड ये H3 प्लस बन जाएगा। सही है, तो यहाँ पे आपने एमाइन को प्रोटोनेट कर दिया, तो दिस इज पॉजिटिव नेट चार्ज। एल्कलाइन में अगर आप करते हैं तो यही सेम चीज होगी, बट इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी विद OH माइनस, और OH माइनस के साथ यू आर एक्चुअली गोइंग टू रिएक्ट विद दी कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, इनफैक्ट इसमें वाटर भी रिलीज होगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाएगा। सो O माइनस एंड H2O, basically this is acid plus base giving you salt and water। अच्छा, ये अल्कलाइन कंडीशंस में हो गया। एंड अगर हम इसको देखें, जो हमने ग्लूटामिक एसिड बनाया था, ग्लूटामिक एसिड में लो पीएच का मतलब ये है कि लो पीएच इज रिलेटिव टू द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब ये न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, Electric एट, एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। यहाँ पे लो पीएच इज relative to isoelectric point, relative to pi लिख देता हूँ मैं, relative to pi, and this is also high pH relative to the pi। pi is not personal investigator। I have two questions. हाँ, What does this have to do with electricity? Because it's called the isoelectric point. isoelectric point must have something to do with it। Isoelectric, and बस इसका, because we're talking about the net charge, right? So that's Oh, why I named it isoelectric। okay. And my हाँ, other question is, amino yes, acids can be used to make enzymes, right? yes, they are made of enzyme because sorry, And amino acids हैं ही protein, and all yeah, enzymes are proteins। yeah. So if I increase the temperature, हाँ, the enzymes denature, yes, which means that the amino acids structure is changing. Like not the individual one, but हाँ, in relation to each other, they're changing. yes, हाँ, So what does that do for their isoelectric point? their isoelectric point, अच्छा, 'Cause we uh, also know that as temperature increases, the pH scale shifts. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सो सबसे पहली बात हम तो ये देख लेते हैं ना कि वी आर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट एन एंजाइम, राइट? तो अगर तो इफ यू आर हीटिंग एन एंजाइम, तो एंजाइम वी नो के डीनेचर हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, एंड इफ यू हीट इट इनफ इनफैक्ट, तो वो एंजाइम टूट के एंजाइम का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है। एज इन, यू, एंजाइम इज नॉट जस्ट अ सिंगल प्रोटीन, इट्स एक्चुअली लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स बंडल टुगेदर। पढ़ा होगा आपने, उनका फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, Yeah. क्वार्टनरी भी होता है। तो सबसे पहले तो वो चीज निकलती है आपकी कि वो, आई बिलीव, टर्शरी से ब्रेक डाउन करके सेकेंडरी पे आता है, फिर समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले तो उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, फिर वंस यू स्टार्ट ब्रेकिंग द प्रोटीन, राइट, वो प्रोटीन आप उसको भी हीट अप करके डीनेचर कर सकते हो, हीट। अच्छा, जब आप उसको हीट करते हैं तो देन यू गेट लॉट्स ऑफ अमीनो एसिड्स।
अच्छा, अमीनो एसिड्स बन गए, डबल ए डबल ए डबल ए। अच्छा, बाय द वे प्रोटीन को तोड़ने का सिर्फ हीट तरीका नहीं है, You can also change pH. पीएच भी, आई बिलीव सो, पीएच भी कर सकते हैं हाँ, क्योंकि अगर आप देखें, You're एक changing. प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन में कौन सी लिंकेज होती है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। डू यू रिमेम्बर हाउ टू हाइड्रोलाइज दिस? क्योंकि ये क्या है, दिस इज वन पार्ट It ऑफ would become a अमीनो carboxylic एसिड। acid and a हाँ amine एग्जैक्टली, डू यू रिमेम्बर ये हम किस तरह से करते थे, एमाइड का हाइड्रोलिसिस with HCl. No, विद HCl। सोचे जरा क्या क्या था, हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी पढ़ा था और एक एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी पढ़ा था। I don't remember. ओके, वैसे हम बनाते किस तरीके से, बाय द वे अभी मैं आपको बल्कि पेप्टाइड का बताता हूँ, फिर हम करते हैं। अच्छा, इज द सेम एज एस्टर बाय द वे, अगर आपको याद नहीं आ रहा, एस्टर का याद है? Water, एंड dilute HCl. यस, तो इट्स द सेम ओवर हियर, यू ब्रेक इट डाउन। अभी पहले मैं आपको वो पहले बनाते हैं, फिर उसको हम तोड़ते भी हैं। अच्छा, तो आइडिया, खैर हमारा सवाल ये था कि हाउ वुड दी हीट अफेक्ट अमीनो एसिड्स। हीट का इफेक्ट हम इसका तो हमें पता है, यहां से लेके यहां तक हीट का इफेक्ट। अमीनो एसिड पे हीट का इफेक्ट जो है वो पीएच पे, सोचना पड़ेगा इस पे। इफ यू हीट दी, बाय द वे वो जो हम पीएच की बात कर रहे थे वो दैट वाज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की हम बात कर रहे थे। ऑल द अदर पीएच स्केल चेंज एज वेल, कि वो जब हम कह रहे थे ना कि पीएच इज इक्वल्स टू 7, वो वाटर का पीएच था एट 7 एट 25 सेल्सियस, एज इन किसी और चीज का पीएच कंप्लीटली फिर डिफरेंट होगा। But हम्म, it's all relative to water, right? हाँ इट इज रेलेवेंट, वो रिलेटिव टू वाटर। pH is equals to 7, pH is equals to 7 essentially क्या है, pH scale is just the क्या कहते हैं simplified value of Kw, और क्योंकि Kw क्या है, Kw is the concentration of H plus and the concentration of OH minus multiplied, और water basically इन चीजों से बनता है। तो अगर तो आप H2O is equals to H plus and OH minus, if you alter this relationship तो उसकी वजह से Kw चेंज होगा, Kw चेंज होगा तो that means that pH is also going to change, तो वो entirely पूरा आपका स्केल ही डिफर करेगा। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते किस तरह से करेगा, उसके लिए देन we'll have to use the calculation method। अच्छा, और खैर अमीनो एसिड्स का पीएच रिलेटिव टू पीआई, हम्म, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो can't think of it, I shall think about it and answer you later, write it down। How does isoelectric point, how does heat affect amino acid isoelectric point? ओके, खैर हाँ, लो पीएच पे हमने देखा रिलेटिव टू पीआई के इट्स एन एसिडिक कंडीशन, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये ज्वेटर आयन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिस इज सिंपली गोइंग टू एग्जिस्ट एज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे ये H प्लस बन जाएगा। और अगर तो वो हाई पीएच है दैट मीन्स इट्स इन relatively alkaline solution, तो इसकी वजह से इसके ऊपर इज एक्चुअली गोइंग टू गेट अ नेगेटिव टू चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर भी माइनस आ जाएगा और इसके ऊपर भी माइनस आ जाएगा, माइनस एंड इसके ऊपर भी माइनस। अब न्यूट्रल एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का यहाँ पे मतलब ये है कि दिस इज द पीएच इज इक्वल टू पी आई, ठीक है, द पीएच इज इक्वल टू पी आई, यहाँ पे न्यूट्रल का मतलब है, यहाँ पे न्यूट्रल का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि पीएच इज इक्वल टू 7, वो न्यूट्रल पीएच इज इक्वल टू 7 का मतलब ये है कि प्योर वाटर इज न्यूट्रल एट पीएच 7। अच्छा, तो यहाँ पे इफ पीएच इज इक्वल टू पी आई, उसका मतलब ये दैट द नेट चार्ज इज जीरो, सो दैट मीन्स
आप सिर्फ उन्हीं को आपस में रिएक्ट करते हैं, या फिर यू ओनली मेक दोज चार्जेस जो कि कैंसिल आउट हो जाए। सो दैट लेट्स से कि इसमें O माइनस अगर मैं कर दूं, और अगर मैं इसमें एक H प्लस ऐड कर दूं, दिस इज अ ज्विटर, दिस इज ए ज्विटर आयन। सही है। अच्छा, फिर हाँ, पेप्टाइड का पूछ रहे थे कि पेप्टाइड किस तरह से बनता है। पेप्टाइड इज बेसिकली अ टाइनी प्रोटीन, इट्स lots of peptides then bond together to form proteins. Peptide is like a mini protein, it's not yet mature enough to be a protein, it's a toddler. अच्छा, तो let's say you have two glutamic acids, ये भी अमीनो एसिड है, वो भी अमीनो एसिड है। तो what you're going to do is you're basically going to follow the same form as esterification and forming amides. क्या करते थे याद है? इधर से OH निकालें, And then the H from the yep, and amide. you release water, और आपने ये condensation polymerization कर ली. So you basically just take this part and you take this part and remove water. ये हमारे पास एक amide linkage बन गई. This thing is called an amide, या फिर इसको हम एक और लफ्ज भी कहते हैं इन बायोलॉजी, पेप्टाइड लिंकेज। सही है। Yeah. प्लस H2O, क्योंकि आपने एक कॉन्डेंसेशन पॉलिमराइजेशन की है। सो दैट मीन्स कि अगर आप इसमें वाटर को वापस डाल देंगे, दे आर गोइंग टू ब्रेक अपार्ट इनटू टू अमीनो एसिड्स, लेकिन वो डायरेक्टली सिर्फ वाटर से नहीं होता, बिकॉज दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी रिवर्सिबल। आपको एक कैटलिस्ट भी डालना पड़ता है, जैसे डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन हीट इट विद वाटर टू ऐड बैक द वाटर। सही है। अच्छा, अब आप ये एग्जांपल करें, डू ड्रॉ एंड मेक वन, ड्रॉ अ डाइपेप्टाइड ऑफ ग्लाइएला। इस तरह का क्वेश्चन आपको पास पेपर में दिया होगा, वेर यू बीन गिवन द अमीनो एसिड, you just have to draw the peptide. Should I draw it or should I just tell you Yes, how to do it? yes, yes, बना के दिखाएं भाई। Okay. Okay. iPad died. पेपर पे बना ले। Oh, okay, okay, okay. So we had to look in that direction. वो PI, yes, yes, this was not in A levels. वो अब यहाँ पे if you remember, ये एक वीक एसिड है, एंड जो एमाइन है वो कह सकते हैं कि वो एक तरह से एक वीक बेस है। सो देयर आर सेपरेट स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स, एसिड कांस्टेंट्स, एसिड बेस कांस्टेंट, एक Ka समझे इसके लिए होता है, और फिर समझें कि एक कांस्टेंट ऑफ अ बेस इज, वी हैव अ कांस्टेंट ऑफ अ बेस फॉर दिस वन। सही है। तो व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर, तो उसकी वजह से इसका Ka चेंज होता है, और इसका Kb चेंज होता है। Kb भी होता है, इसका एक और नाम था, हाँ, Kb, yes. Kb is basically the same idea of Ka, but just for bases. Dissociation of dissociation और protonation of amines या फिर bases. तो ये सेम आइडिया यहाँ पे अप्लाई होता है कि हम देखते थे ना कि इफ यू हीट अप एन एसिड, तो लेट्स से उसकी डिसोसिएशन अगर बढ़ जाती है, सो दैट मींस दैट द Ka इज एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज एज वेल, राइट? कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम आपका कांस्टेंट जो है शिफ्ट कर जाता था। तो ये उसका मेन आइडिया है कि इफ यू चेंज द टेम्परेचर, उसकी वजह से द PI विल चेंज, एंड इट विल बी बेस्ड अपॉन द चेंजेस इन Ka एंड Kb। तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, बट दिस इज वेयर वी हैव टू लुक।
but that is not in A levels. Okay. लिखा हुआ in general for most amino acids, increasing the temperature lowers the pKa or vice मतलब lowers the pKa का मतलब ये है कि it increases the Ka and that means कि it will shift the Pi. अब वो किस तरह शिफ्ट करेगा, वो उसके लिए फिर आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा ऑफ द अमीनो एसिड. Okay, so you had CO double bond O NH, ठीक है, and yep, that's correct. That's a that's a dipeptide. सही है. तो if you want to break it, तो अगर आपने वापस इस पे जाना है तो आप सिंपली क्या कहते हैं, dilute HCl slash NaOH plus heat. This is what, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस. सही है. That's the main idea. Okay. Okay, and that's it. ये हमारा अमीनो एसिड्स खत्म हो गया. And in the next class we'll do electrophoresis. Simple सा ये भी बहुत. It's basically कि आप you use a gel where you have positive electrodes and मतलब you have two plates and you have a gel in between which can conduct electricity and amino acids can flow in between them. So you can check the size, the charge, and the overall reactivity of an amino acid by determining how far it travels from in between. ये electrophoresis का idea है. तो ये हम अगली क्लास में कर लेंगे. और we can also use it to separate the amino acids according to their charge. कि as in if you have lots of amino acids and आपको ये नहीं पता कि which one is which, तो electrophoresis से आप कर सकते हैं. It's kind of like क्या कहेंगे इसको हम, हाँ, this is a special kind of chromatography, a special chromatography for amino acids only. सही है. जैसे वो क्रोमेटोग्राफी हम सिर्फ वो डाइज वगैरह के लिए करते थे, या a few other compounds that you have to separate. Electrophoresis like is a, it's a special kind of chromatography just for amino acids. सही है. I'll share the note for this. Notability keeps logging out. I You have no should idea sue what. them. I should sue them, of course. I should utilize all my resources and sue them. Yes. For slightly inconveniencing you. You're right. Do we have physics now? Yes, I have to pray Maghrib and we can get back here. I'll send a new link in the physics group. Okay. ठीक है. Okay, see you in 5 to 10 minutes. Okay.